السلام علیکم ناظرین، روشی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں 77ویں یوم جمہوری تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ اقلیتی علاقوں میں جوش و خروش کے ساتھ جشن کا انعقاد۔ عوام کی ذمہ داری کو فراموش کیے بغیر ملک کی خدمت و ترقی کے لیے کوشش کرے۔ پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ یوم جمہوریہ ہند تقاریب سے کلکٹر الا ترپاٹھی کا اظہار۔ کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے کوشش کریں۔ آرمور ایم ایل اے راکیش ریڈی کا اظہار۔ شہر نظام آباد کے سبھاش نگر میں واقع کے6 GTPL روشنی چینل دفتر پر یوم جمہوریہ ہند تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ BC مردم شماری پر حکومت کی جانب سے کی گئی گنتی پر تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے برہمی جتائی۔ دستور کے آئین کو پامال کرنے والے ریونت ریڈی حکومت انتظامی کارروائی سے گریز کرتے ہوئے دیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ بالکنڈہ میں منعقدہ 77ویں یوم جمہوری تقریب سے سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA پرشانت ریڈی کا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ نوجوانان چندرا شیکھر کالونی کی جانب سے جشن یوم جمہوریہ کا شاندار پیمانے پر کیا انعقاد۔ آج وطن عزیز کی 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر شہر نظام آباد کے علاقہ چندرا شیکھر کالونی کے نوجوانوں کی جانب سے جشن یوم جمہوریہ کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں محمد سہیل قریشی، منصور علی، شیخ نور، شیخ صابر، عبدالنبی، شیخ بابر و دیگر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے عوام میں مٹھائی تقسیم کی۔ نوجوان قائد AK حفیظ کی یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقدہ مختلف تقاریب میں باحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر کی شرکت۔ آج 77ویں یوم جمہوری تقریب کا شہر میں کافی جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا اور اسی خوشی و مسرت و حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے شہر نظام آباد کے مشہور و معروف تاجی و سماجی قائد AK حفیظ کی جانب سے مختلف تقاریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ان کی جانب سے ڈویژن 56 میں مکہ مسجد و شاکر ڈیری کے پاس منعقدہ پرچم کشائی تقریب میں لائی۔ انہوں نے باحیثیت مہمان خصوصی اپنے حامیوں کے ہمراہ بائک ریلی کے ذریعے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سید رفیق الدین، الیاس الدین، شاکر، عمران، عابد ارسلان و دیگر موجود تھے۔ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر نظام آباد اربن کوک ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے رسم پرچم کشائی تقریب کا انعقاد۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر نظام آباد اربن کوک ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کے آفس میں واقع بودن روڈ پر پرچم کشائی تقریب کا اہتمام رکھا گیا، جس میں ورکنگ پریزیڈنٹ محسن جبلی، ایڈوکیٹ جنید علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت اور نعیم استاد نے رسم پرچم کشائی انجام دی اور تمام ہندوستانیوں بالخصوص شہریان نظام آباد کو 77 یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پھل و مٹھائی کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب میں نائب صدر مسعود استاد، کیشر لائق سیکریٹری کلیم، جنرل سیکریٹری شفیق، جوائنٹ سیکریٹری شیخ ایوب، شیر خان، نور استاد، شیخ حاجی احمد استاد، رحیم خان، تنویر علی موجود تھے۔ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر نوجوان قائد آصف حسین کی جانب سے شاندار تقاریب کا انعقاد۔
موجوریٹ کا ایڈوکیٹ ذیشان رضوی اور نوجوان قائد امتیاز کے ہاتھوں کیا گیا افتتاح۔ شہر نظام آباد کے حرکیاتی نوجوان آصف حسین کی جانب سے ہاشمی کالونی روبرو پیلا اسکول پر موسم گرما کے پیش نظر AI موجوریٹ ڈسٹریبیوٹر کا افتتاح عمل میں لایا گیا، جس میں عوام کو نت نئے قسم کے ریفریشڈ ڈرنک دستیاب ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت ایڈوکیٹ ذیشان رضوی اور مقامی قائد امتیاز نے شرکت کرتے ہوئے افتتاح انجام دیا۔ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر آصف حسین کی جانب سے رسم پرچم کشائی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ان کے والد ساجد حسین کے ہاتھوں ترنگا لہرایا گیا۔ اس موقع پر عارف حسین، محمد سہیل، عامر و دیگر موجود تھے۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ منڈل میں واقع بورلم SC سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں ایک سانحہ پیش آیا۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ منڈل کے مراکز پر واقع بورلم SC سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں ایک سانحہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پرنسپل جوتی نے گھر میں پوجا کرنے کے لیے گروکل اسکول سے کرسیاں لے گئی اور پوجا ہونے کے بعد بذریعہ آٹو کے تحت روانہ کیے جانے والے کرسیوں کو عملہ اور طالبات نے نیچے رکھ کر پھر دوبارہ وہیں آٹو میں سوار ہو کر جانے کے دوران ڈرائیور کی جانب سے آٹو کو نہیں روکا گیا، تب ایک طالبہ نے آٹو سے چھلانگ لگانے کے عمل میں سنگیتا نامی طالبہ کو شدید چوٹیں آنے کے علاوہ خون بہنے سے فوری طور پر ہاسپٹل کو منتقل کیا۔ ڈاکٹر نے شدید زخمی طالبہ کی فوت ہونے کی تصدیق کی۔ 8ویں جماعت میں زیر تعلیم طلبہ سنگیتا و اچانک فوت ہونے کے باعث گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ متوفی کے افراد خاندان اسکول کے گیٹ کے باہر بیٹھ کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع کے فوری بعد ریاستی زرعی مشیر بانسواڑہ MLA پوچارام سرینیواس ریڈی، سب کلکٹر کرن مئی جائے مقام پر پہنچتے ہوئے تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ محکمہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے تحقیقات کرنے کا اظہار کیا۔ مختلف پارٹیوں کے قائدین بانسواڑہ امبیڈکر چورستے کے پاس احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ అమ్మాయి ప్రాణాలు కోల్పోవడం అందరికి బాధాకరం. సంగీత అనే అమ్మాయి 8వ తరగతి దళిత బిడ్డ. ఆ సంఘటన దురదృష్టకరం. హైదరాబాదు CMO ఆఫీస్కి మాట్లాడాను, అక్కడ ఉన్నటువంటి OAG గారితో కూడా మాట్లాడాం. మన చనిపోయిన బిడ్డను తీసుకురాలేం కానీ ఏదైనా ఎక్స్రేస్ ఇస్తే బాగుంటుంది పేదవారని చెప్పి అడిగాం. వాళ్ళు బాధతో స్కూల్ దగ్గరికి పోయి నిరసన వ్యక్తపరిచారు. కాబట్టి ఆ యొక్క CMO ఆఫీస్ నుంచి ఎక్స్రేస్ కోసం 5 లక్షల రూపాయలని అడిగాం. CM ఆఫీస్లో ఒప్పుకున్నారు. దాని లెటర్ పంపమన్నారు. కలెక్టర్ గారు, సబ్ కలెక్టర్ గారు లెటర్తో పాటు నా లెటర్ కూడా పంపించమని చెప్పారు. అది పంపించి వారికి పోయిన బిడ్డను తీసుకురాలేము కానీ ఏదో కొంత ఊరట కలిగే విధంగా పేద కుటుంబం కాబట్టి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేద్దాం. ఆమె మరణం పట్ల తీవ్రమైనటువంటి సంతాపాన్ని మనం వ్యక్తపరుస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియపరుచుకుంటూ BRS قائد شیخ نبی کی جانب سے جشن یوم جمہوریہ کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ آج شہر نظام آباد کے حرکیاتی BRS قائد شیخ نبی کی جانب سے جشن یوم جمہوریہ کا شاندار پیمانے پر ڈویژن 33 میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہر کے مشہور و معروف تاجی شیخ سلیم بھارت فلاورز کے علاوہ وسیم، خواجہ قریشی، عظیم، سہیل، مجو، شوکت، ضمیر، عادل کے علاوہ کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ نبی کی جانب سے علاقے کے بزرگوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ سابقہ کارپوریٹر عبدالغفور مقیم کی جانب سے یوم جمہوریہ پر محمدیہ کمیونٹی ہال میں پرچم کشائی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محمدیہ کالونی محمدیہ کمیٹی ہال میں 26 جنوری کے موقع پر پرچم کشائی عمل میں لائی گئی ہے، اور ساتھ ہی میں بزرگان دین اور محلے کے معتبر شخصیت اور نوجوان بچوں کے ساتھ یہاں پر پرچم کشائی عمل میں لائی گئی ہے۔ میں اس موقع پر تمام برادران وطن، تمام عالم اسلام کو اور تمام ہندوستانیوں کو اور بالخصوص شہر نظام آباد اور ڈویژن نمبر 60 کی یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ مل جل کر رہے اور یوم جمہوریہ کے جو قانون بنائے گئے ہیں اسے ہم فالو کریں۔ پھر ایک بار میں
बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 के अवाम को यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर बुजुर्गान दीन और जो भी मोतबर शख्सियत और तमाम लोग नौजवान बच्चे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में 77वां यौम जमहूरिया की तकरीब का एहतमाम। सीनियर वकील राजेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। हर साल की तरह इस साल भी शहर के मारूफ निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में 77वें यौम जमहूरी की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी शहर निज़ामाबाद के मशहूर व मारूफ सीनियर एडवोकेट और बार कौंसिल मेंबर जनाब राजेंद्र रेड्डी साहब ने शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अब्दुल कदीर साहब और सैयद आजम साहब ने जनाब एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी साहब की शाल पोशी और गुलपोशी की। तकरीब में शहर के दीनी व सियासी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद रही। निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल के मैनेजमेंट और अब्दुल कदीर साहब व सैयद आजम साहब ग्रुप की जानिब से तमाम मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मेहमानों में मिठाई तकसीम की गई और सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की गई। वादिया हुसैन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जश्न यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद। वादिया हुसैन कॉलोनी निज़ामाबाद यौम जमहूरिया के मौके पर एक शानदार तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जनाब मसीहुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी वादिया हुसैन वेलफेयर सोसाइटी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी, जिसके बाद फिजा हुब्बुल वतनी इत्तेहाद और कौमी यकजहती के नारों से गूंज उठी। वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारान व अराकीन ने इस तकरीब में शिरकत की। वादिया हुसैन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान और अराकीन ने शिरकत की, जिनमें बिलखुसूस सदर मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, नायब सदर मोहम्मद हारून रशीद साहब, खाजिन मोहम्मद अमजद साहब, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शफीक साहब, मोहम्मद रऊफ, एग्जीक्यूटिव मेंबर अफजल साहब, शफीज साहब की मौजूदगी ने प्रोग्रामों को मजीद विखार बख्शा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने खुसूसी की शिरकत इस बाबरकत तकरीब में दीगर समाजी तंजीमों के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान ने भी शिरकत की, जिनमें बसीरा सोसाइटी के सदर मोहम्मद अमजद साहब, अकबर बाग सोसाइटी के सदर सिकंदर साहब, शफीज साहब, रज़ाक साहब, अब्दुल गनी साहब शामिल थे। वाज़ेह रहे कि जनाब मसीहुद्दीन साहब को इस साल कॉरपोरेटर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस मौके पर अवाम ने इनकी खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मसीहुद्दीन साहब ने हमेशा अमीर व गरीब, हिंदू व मुस्लिम किसी भी इम्तियाज के बगैर अवामी खिदमत को अपना बनाया है। वो हर छोटे बड़े मसले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा पेश रहते। मसीहुद्दीन साहब का अवाम से खिताब। अपने खिताब में मसीहुद्दीन साहब ने कहा, खल्क़े खुदा की खिदमत में ही मेरा सुकून है। अगर मुझे रहबर के तौर पर मुंतखब किया गया तो इंशाअल्लाह महल्ले की तरक्की, तालीम के फ़रोग़ और कॉरपोरेटर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरे खुलूस और दयानतदारी के साथ निभाऊंगा। इस मौके पर वादिया हुसैन कॉलोनी के अवाम ने मसीहुद्दीन साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हमेशा इनके साथ खड़े रहने का वादा किया और इनकी क़ियादत को महल्ले के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर चंद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शाल पोशी करते हुए इज्जत अफजाई की गई, जिससे प्रोग्राम की विखार और खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ। बाग है और आपके भगत सिंह कॉलोनी है, एनआरआई कॉलोनी है, आप लोग जो भी काम है पूरा हर मैं कोशिश करूँगा मैं काम करने के लिए। पेंशन का है, आपके राशन कार्ड का है, उसके लिए मैं आगे बढ़ चढ़ काम करूँगा। आप डिवीज़न नंबर 54 में कांग्रेस इंचार्ज शेख जाकिर की अवामी खिदमत, मुफ्त बर्थ सर्टिफिकेट की तकसीम। शहर के डिवीज़न नंबर 54 के कांग्रेस इंचार्ज शेख जाकिर की जानिब से इलाके की अवाम को मुफ्त में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की सहूलियत फराहम करने की जिम्मेदारी उठाई गई थी। इस मुहिम के तहत हाल ही में 150 बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किए गए, जबकि आज 180 से 200 बर्थ सर्टिफिकेट अवाम में तकसीम किए गए। इस मौके पर शेख जाकिर ने कहा कि अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए अब तक मजमूई तौर पर 350 से जायद बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से वह अवाम के दरमियान रहते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। शेख जाकिर ने इलाके के अवाम से अपील की कि आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में इनका साथ दे और अगर पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाती है तो इन्हें कामयाब बनाकर अवामी खिदमत के मजीद मौक़े फराहम करें। डिवीज़न 54 के तमाम लोगों को और मुसलमानों को रिपब्लिक डे का मौके पर आप सबको मुबारकबादी देता हूँ और इसी मुबारकबादी में आप लोगों को जो बर्थ सर्टिफिकेट मिले हैं, आप
लोग जो मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दिए थे, तमाम लोगों को मुबारकबादी है। 180 से 200 सर्टिफिकेट आज डिस्ट्रीब्यूट हुए, अप्रूवल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी 150 सर्टिफिकेट दिया गया था, अभी भी और 200 सर्टिफिकेट का ख़रीद दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरा ताउन किया, बहुत सारी मदद की, भरोसा करे, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे डिवीज़न के लोगों का और इतनी हिम्मत अफजाई देने का। और इलेक्शन करीब है, इंशाल्लाह मेरे को मौका भी है और आप लोगों का ताउन की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाबी हासिल होंगी। जो लोग भरोसा करे, जो आप लोगों के दरमियान रहे, उस पर भरोसा करिए। ये 4 दिन के बाद करते फिर 4 साल आपके पास से दूर हो जाते। हम 5 साल से आप लोगों के दरमियान रहे, काम करे, 350 से 400 के करीब सर्टिफिकेट अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेरे डिवीज़न में। SIR से जो डराया धमकाया जा रहा है, SIR का मैं काफ़ी टाइम से मेरे ऑफिस पे से काम आप लोगों को स्लिपां दे रहा हूँ, और इंदरमा स्कीम का, राशन कार्ड का, लाइट बिल का, गैस का, और बहुत सारे स्कीम जो गवर्नमेंट तरफ से अप्रूवल दे रहे थे, फ्री सर्विस में, फ्री काम में आप लोगों को। निज़ामाबाद मदरसा उम्मे हानी लील बनात में यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद में वाक़े अकबर बाग कॉलोनी मदरसा उम्मे हानी लील बनात 26 जनवरी यौम जमहूरिया के पुरमसरत मौके पर एक पुरविकार और हुब्बुल वतनी से लबरेज तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मदरसे के सदर आला जनाब अब्दुल सत्तार साहब के हाथों कौमी परचम कुशाई अमल में लाई गई। मदरसे की मासूम और बाअदब तालिबात ने निहायत खुशुलहानी और जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ तरानाहीन व वतन से मोहब्बत पर मबनी गीत पेश किए, जिन्होंने हाज़रीन के दिलों को छू लिया और माहौल को रूप परवर बना दिया। इस मौके पर मदरसा उम्मे हानी लील बनात की सदर मौलिमा ने इजहार मसरत करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के लिए खुशी और फख्र का दिन है। ये दिन हमें आइन हिंद की पासदारी, कानून की इताअत और वतन के उसूलों पर खुलूस के साथ अमल करने का पैगाम देता है। इस्लाम में वतन से मोहब्बत को एक अजीम अमल करार दिया गया है, इसलिए हम पूरे मुल्क की कानून की इताअत और वतन के उसूलों पर खुलूस के साथ अमल करने का पैगाम देता है। इस्लाम में वतन से मोहब्बत को एक अजीम अमल करार दिया गया है, इसलिए हम पूरे मुल्क को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। इस बाबरकत तकरीब में महल्ला अकबर बाग कॉलोनी की मुतअद्दिद ज़िम्मेदार और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। खुसूसन जनाब अब्दुल कलीम साहब की मौजूदगी ने प्रोग्राम को विकार बख्शा। जनाब अब्दुल कलीम साहब ने अपने खिताब में कहा कि यौम जमहूरिया वो दिन है जब मुल्क में आइन नाफिज किया गया, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यकसा हुकूक फराहम करता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ तमाम मज़ाहब के लोग मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अकबर बाग कॉलोनी में दीनी मदारिस का होना बड़ी सआदत और बाबरकत बात है। आज के दौर में वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बच्चियों को दीनी व अखलाकी तालीम से आरास्ता करे और दीन की तरफ खास तवज्जो दे। इस मौके पर तमाम शुरका ने मदरसा उम्मे हानी लील बनात की तालीम, दीनी और समाजी खिदमात को सराहा और इस इदारे को कौम व मिल्लत के लिए एक कीमती सरमाया करार दिया। इस तकरीब में मदरसा उम्मे हानी लील बनात के सदर आला अकबर बाग कॉलोनी के जिम्मेदारान और दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने शिरकत की। ये प्रोग्राम कौमी एकजहती, हुब्बुल वतनी और दीनी शऊर का एक खूबसूरत इम्तिजाज साबित हुआ। हमारे को हिंदुस्तान में एक हक से जीने का मौका मिला है और सबसे बड़े फख्र की बात यह है, हमारे मोहल्ले में 2 मदारिस है। एक तो जो है ना जामे हाशमी, अनवर हाशमी, और दूसरा जो है उम्मे हानी लील बनात। 2 मदरसे ऐसे हैं जहाँ जो है ना हमें बहुत फ़ख्र करना चाहिए, हमें बहुत मसरत होए, क्योंकि जिस मोहल्ले में दीनी इल्म होता है वहाँ पे बरकत वाला मोहल्ला कहलाता है वो। माशाअल्लाह हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। यहाँ पे जो भी आलिमा है और जो भी असातिज़ा है जो बच्चों को जो है ना गाइडेंस कर रहे, पढ़ा रहे, मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा बच्चों को दीनी तालीम दे और उन्हें आगे बढ़ाए, और जहाँ तक हो सके यहाँ पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चों के जो है ना एडमिशन्स करवाए। अस्सलाम वालेकुम।
डिचपली के 7 बटालियन में 77वां यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। डिचपली में वाक़ तेलंगाना स्पेशल पुलिस 7वीं बटालियन में 77वीं यौम जमहूरिया हिंद के मद्देनजर कमांडेंट पी सत्यानारायण के ज़ेर एहतमाम बटालियन परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कमांडेंट ने भारत माता और महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए झंडा लहराते हुए तमाम आवाम को 77वीं यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कमांडेंट सत्यानारायण ने कहा कि बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के तमाम शहरों की जमहूरी निज़ाम में रहनुमाई करे और जद्दोजहद आज़ादी के अक़लियतों को पूरा करने के लिए दस्तूर साज असम्बली को तश्कील की गई और दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी आइन को तहरीर किया है। इन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के अवाम मुकम्मल आज़ादी, मसावत, सेक्युलरिज्म और इंसाफ को मुकम्मल सतह पर एक हक के तौर पर हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बटालियन स्टेट बी नरसम्मा स्वामी RIC व दीगर ने शिरकत की। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर वाक़े पुलिस परेड ग्राउंड में 77वां यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। यौम जमहूरिया हिंद के मद्देनजर जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर वाक़े पुलिस परेड मैदान में रिपब्लिक डे तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कौमी झंडे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। बाद अज़ां पुलिस की जानिब से की गई सलामी को कबूल किया और मुख्तलिफ महकमे जात के तहत जिले में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह व बहबूदी प्रोग्रामों और हासिल की गई पेश रफ्त के बारे में वजाहत किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, एडिशनल DCP बसवा रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने जिलाई ओहदेदारान मारूफ शख्सियात को पदम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमिन को तौसीफनामा हवाले किया। इस मौके पर महकमे ज़राअत, बागबानी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जंगलियात मिशन भगरता, फिशरीज, मुख्तलिफ महकमे जात के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए स्टॉल्स मुतासिर कुन रहे। हुकूमत की जानिब से बावक़ात तरीक़े से रूबे अमल में लाए जाने वाले रईतु भरोसा, इंदिरामा इल्लू, फूड सेफ्टी राशन कार्ड, इंदिरामा आतिमिया भरोसा के अलावा मुख्तलिफ फलाह व बहबूदी स्कीमात के अलावा तरक्याती कामों के निफाज का मुशाहिदा करते हुए ज़राअत, हाउसिंग, DRDA, ट्रांसको, सिविल सप्लाई, मेडिकल हेल्थ, राजू, आरोग्यश्री, 108, 102, एम्बुलेंस, मोबाइल, फोरेंसिक, विहान, HIV एड्स मुख्तलिफ के बारे में स्टॉल्स के जरिए की गई नुमाइश मुतासिर कुन रही। సభ్యులు విపులంగా చర్చించి సవరణలు చేసి అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం జరిగింది। భారత స్వతంత్రత పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 1930లో పూర్ణ స్వరాజ్ కోసం ప్రకటన చేసి జనవరి 26 తేదీకి ఉన్న ప్రాముఖ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ తేదీ నుంచి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి తీసుకురావాలని నిశ్చయించింది। 2025-26 యాసంగి సీజన్లో 5 లక్షల ఎకరాల సాగు లక్ష్యంతో ప్రణాళిక సిద్ధం చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా వరి 4 లక్షల ఎకరాలు, శనగ 14,000 ఎకరాలు, మొక్కజొన్న 25,000 ఎకరాలు, ఎర్రజొన్న 24,000 ఎకరాలు సాగు అవుతుంది అంచనా సిద్ధం చేయడం జరిగింది। ఇప్పటి వరకు 3 లక్షల ఎకరాల్లో శనగ 14,000 ఎకరాల్లో, మొక్కజొన్న 32,000 ఎకరాల్లో, ఎర్రజొన్న 21,000 ఎకరాల్లో అనగా మొత్తం 4 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు రైతులు సాగు చేయడం జరుగుతుంది। शहर के किशापुर देहात में CM रेवंत रेड्डी के जलसे आम के लिए इससे मुत्तालिक अराजी का रियासती हुकूमती मुशीर
पी सुदर्शन रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने लिया जायजा। निजामाबाद रूरल हल्के में वाक़े किशापुर रोड में सीएम रेवंत रेड्डी के जल्द से आम के लिए इससे मुतालिक अराजी पर रियासती हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अनकरीब मुनाकिद होने वाले सीएम रेवंत रेड्डी के जल्द से आम के लिए इससे मुतालिक अराजी पर जायजा लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डीसीसी सदर नगेश रेड्डी, कॉर्पोरेटिव यूनियन चेयरमैन मानालाना मोहन रेड्डी, एएमसी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, साबिका एमएलसी ए नरसा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। दस्तूर के आइन को पामाल करने वाले रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करते हुए दिए गए वादों को पूरा करे। बालकोंडा में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का इजहार। बालकोंडा एमएलए कैंप दफ्तर में मुनक़िदा यौम जमहूरिया हिंद तकारीब में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जात पात मजहब या इलाके के इम्तियाज के बगैर इत्तेहाद के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इसके लिए अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा आइन ही इसकी असल वजह होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 100 साल के बाद मुल्क की हालत में तब्दीली आने के अंदेशे के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने दानिश्वरों से मशावरत करते हुए हमें आला तरीन आइन हवाले करने का इजहार किया। రాజ్యాంగాన్ని మనకు ప్రసాదించినారు। ఈ దశాబ్దాలుగా ఈ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో భారతదేశం ఒకటిగా ఉంటదని కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నాను। అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ అక్కడక్కడ కొన్ని అపశృతులు జరుగుతా ఉన్నాయి। రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచే విధంగా మతాల మధ్యల, కులాల మధ్యల దేశాలు పుట్టి మరి పబ్బం గడుపుకునే విధంగా ఇవాళ వ్యవస్థ తయారైంది। అది పోవాలి। తప్పకుండా మనందరం ఒకటిగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిగా మనందరం ఒకటిగా ఉండాలి అని చెప్పి यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर हैदराबाद के जागृति पार्टी दफ्तर में सदर के कविता ने परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज 77वें यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर शहर हैदराबाद के जागृति दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते कौमी जज्बे के अलावा सुभाष चंद्र बोस के जज्बे के साथ आगे बढ़े। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बीसी की मर्दमशुमारी पर गलत हिसाब बनाने पर बरहमी जताई। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए मर्दमशुमारी डॉक्यूमेंट्री में बीसी नाम का कालम कहीं भी नहीं है। कांग्रेस हुकूमत बीसी तबके के साथ इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన తర్వాత మనందరం కూడా సరే ఈ 42% ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తప్పుడు లెక్కలు చేసింది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ సెన్సస్ మీద మనం హోప్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాం। కానీ నిన్న వచ్చినటువంటి సెన్సస్ డాక్యుమెంట్ లో కనీసం బీసీ అనేటటువంటి కాలం కూడా లేదు। బీసీలలో ఉన్న ఉపకులాలను లెక్క పెట్టాలని మనం జాగృతి నుండి ప్రయత్నం చేస్తుంటే కనీసం బీసీ అనేటటువంటి కాలం కూడా లేకపోవడం అనేది ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బీసీలను అవమానపరచడం అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। దానికి సంబంధించి అనేక మంది మేధావులతో నిన్నటి నుండి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం। ఆ ఒక కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున మన సంస్థ నుండి టేకప్ చేయబోతున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ నెల 29వ తారీఖున మనం ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। అందులో బీసీలనే కాదు ప్రతి ఒక్క కాస్ట్, ఆ కాస్ట్ లో ఉండే సబ్ కాస్ట్ किसानों को बर वक्त खाद की फराहमी अमल में लाने के लिए ओहदेदारान कोशिश करें। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी का इजहार। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी के क़याम गाह में तेलंगाना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एसोसिएशन निजामाबाद यूनिट कैलेंडर और डायट्री की नकाब कुशाई ओहदेदारों ने अमल में लाई। इस मौके पर एमएलए राकेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए मुसलसल खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की और इसी तरह के प्रोग्रामों में किसानों के लिए हमेशा दस्तयाब में रहते भरपूर ताउन फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर एसोसिएशन सदर राम बाबू, ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर आरमूर विजयलक्ष्मी, हरि कृष्णा, पद्मा, मधुसूदन, महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा आइन आला होने का निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इजहार किया। आज शहर के कंटवेश्वर बाईपास रोड पर वाक़ई निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में 77वां यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर कौमी झंडे की नकाब कुशाई अमल में लगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि
हमारे हिंदुस्तान को दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर की जानिब से तहरीर करदा आइन से हमारे मुल्क में सबके लिए बरहक यकसा मौक़े के अलावा यकसा तरक्की करने में फ़ायदा मंद होने का इजहार किया। शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 GTPL रोशनी चैनल में यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 GTPL रोशनी चैनल समा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए परचम कुशाई अंजाम दे दी गई। प्रोग्राम में केबल ऑपरेटर्स K6 GTPL समा ब्रॉडबैंड स्टार नेटवर्क अमला व दीगर ने शिरकत की। చేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ మరియు మిత్ర బృందమైనటువంటి ఆపరేటర్ మిత్రులందరికీ మరియు మాకు నెట్వర్క్ పూర్తిగా మా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ కూడా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ మరియు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఈరోజు 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనము విజయవంతంగా జరుపుకుంటున్నాము। शहर के अरसापल्ली निज़ाम कॉलोनी में MA बारी के ज़ेर एहतमाम यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के डिवीज़न नंबर 15 अरसापल्ली व निज़ाम कॉलोनी में कांग्रेस सीनियर कायद MA बारी के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस पार्टी जिला सदर नगेश रेड्डी ने शिरकत करते हुए झंडा लहराया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर में वाक़ अकबर बाग कॉलोनी में माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का किया गया इनेकाद। शहर के अकबर बाग कॉलोनी में माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाते परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिसमें अमले के तमाम नौजवानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में अकबर बाग कॉलोनी माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी सदर मोहम्मद सिकंदर, मोहम्मद अब्दुल गनी, मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद शफीउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी, वाइस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम साहब और दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में 77वें यौम जमहूरी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अखलती इलाकों में जोश व खरोश के साथ जश्न का इनेकाद। की जिम्मेदारी को फरामोश किए बगैर मुल्क की खिदमत और तरक्की के लिए कोशिश करें। पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक़िदा यौम जमहूरिया हिंद तकारीब से कलेक्टर इला त्रिपाठी का इजहार। किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करें। आरमूर MLA राकेश रेड्डी का इजहार। निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 GTPL रोशनी चैनल दफ्तर पर यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। BC मर्दमशुमारी पर हुकूमत की जानिब से की गई गिनती पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने बरहमी जताई। दस्तूर के आइन को पामाल करने वाले रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतजामी कार्रवाई से गुरेज करते हुए दिए गए वादों को पूरा करे। बालकोंडा में मुनक़िदा 77वें यौम जमहूरी तकरीब से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी का इजहार। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।